Okay, so good evening. Today's topic is ocean currents. Okay, ocean currents. Last class we have discussed about what? Major and Minor release of reliefs of the ocean, or ocean. of the ocean or bottom of the ocean. बॉटम टोपोग्राफी. ओके, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि ये जो है वो ओशन का टोपोग्राफी है. इट इज दी ओशन बॉटम टोपोग्राफी. ओके, ओशन के नीचे कौन सा टोपोग्राफी दिखाई देता है वो क्या. ठीक है. देन वी हैव स्टडीड दी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड salinity, right? Then we have discussed the different types of ocean deposits. Okay, and lastly the tides, right? So one topic is remaining, that is ocean currents. Currents are the movement of ocean which are regular, constant and in a definite direction. That means in previous class we have discussed there are two types of motion. One is ocean wave, another is ocean current, right? Ocean is the upward and downward movement or a rhythmic movement of water particles, just like this. The particles remain in their same position, just moving upward and downward. Okay, upward and downward. This is the ocean waves. But in case of the ocean current, the water particle, the different types of water particle moves along with the movement of the water. It is an undercurrent. It is not like that in surface layer of the ocean you can observe this type of ocean currents, but it is the under the top layer of the water. Okay, currents are movement of water ocean which are regular, constant in a definite direction. These currents are caused by three main factors. What are the factors that cause movement of or generation of ocean current? First one is the prevailing wind. The wind drives immense bodies, then forming surface currents. If the Earth's rotation was which deflects moving things to right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere, and to the left in, and to the left is repeated two times. Okay, and to the left in southern hemisphere causes the ocean surface current to move in a clockwise or anti-clockwise direction. Generally, it is clockwise. In Northern American Ocean, North Pacific Ocean or Atlantic Ocean or Indian Ocean, it is a clockwise movement. Okay, how clockwise? Just refer to the diagram. This is the diagram. So at first it is first westward, then northeastward, then eastward, then southward. So it is a clockwise motion in northern hemisphere and it is a anti-clockwise movement in southern hemisphere. Is it clear? In Pacific Ocean, clockwise movement in northern hemisphere, anti-clockwise movement in southern hemisphere. Same in Atlantic Ocean also. Not clockwise movement in North Atlantic or anti-clockwise movement in South Atlantic. Is it clear? So then in Indian Ocean also, because Indian Ocean have a very minor part in the northern hemisphere, maximum of the Indian Ocean remains in the southern hemisphere. So main body of the Indian Ocean attains a anti-clockwise movement of ocean currents. Okay, then at first slide. Okay, so what is the major force behind this generation of ocean current? Is the wind drive. Okay, is the wind drive, because as we know that in northern hemisphere, due to the which law that wind drift towards its right, and in southern hemisphere Coriolis force. Okay, because due to this force in northern hemisphere any object drift to its right, and in southern hemisphere any object drift to its left. Okay, it is the Coriolis force. Same देखो, अगर आप लोग देखते हैं कि इसमें अगर देखते हैं तो ये भी देखो, ये जब आ रहा है तो राइट हैंड साइड में ड्रिफ्ट कर रहा है, ये भी जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड साइड में ड्रिफ्ट कर रहा है. So this is a major factor behind the Coriolis force.
okay, or due to the Coriolis force, major factor. Then we have Earth's rotation. It is a basic thing, Earth's rotation, because every object in the or on the Earth's surface rotates with the speed of Earth. Okay, so because Earth rotates from which direction to which direction? West to east. That's why in the equatorial region we have one counter current. This counter current. Okay, this counter current. Okay, it is एकदम जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहां पे हम लोग को देखिए, ये इक्वेटोरियल लाइन है, डॉटेड लाइन इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल लाइन के बीच में एक काउंटर करंट हम लोग को दिखाई देता है ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, काउंटर करंट मींस ये करंट भी इस तरफ आ रहा है, एरो. ओके, द एरो सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ये एरो किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है. दैट मींस दिस इज अ मेन डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट. For northern hemisphere, this is the main direction of ocean current. Look, in between both the type of ocean currents, there is a opposite directional current, right? This is the counter current. Okay, it is simply the opposite directional current between two same directional currents. Okay, and third one is the different types of densities of ocean water. At first slide we have the difference in the density of water. Difference in density of water or water density affect vertical mobility of ocean current. Ocean currents water with high salinity in the. This counter current is caused by Earth's rotation. Yes, because it is in equatorial region. Okay. Difference in water density affect vertical mobility of ocean currents. Water with high salinity is denser than the water with low salinity. Denser water tends to sink while lighter water tends to rise. Okay, cold ocean current slowly moves towards equator from the poles. Warm ocean currents tends to travel from equator along the surface, flow towards the replace the sinking cold water. Okay, that means क्या होता है कि ये जो डायग्राम है अटलांटिक ओशन का ही डायग्राम ही देखते हैं. ओके, ये वाला डायग्राम क्या बोला कि जब पोलर रीजियन में ये जो वाटर है ना, पोलर रीजन, बिकॉज ये तो नॉर्दर्न रीजन के पास है. देखो यहाँ पे ग्रीनलैंड. ओके, दिस इज लंदन. ओके, सो ये जो पोलर रीजन के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है. ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर जो ओशन वाटर होता है दैट बिकम्स डेंस. ओके, एंड डेंस वाटर सिंपली सिंक्स. सो यहाँ पे एक क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है. ओके, ये प्रेशर को फिलअप करने के लिए क्या होता है कि यहां से वाटर यहां तक जाता है. अभी यहां से अगर वाटर ट्रेवल करके यहां पे आया, सेम यहां का जो डेंसर वाटर है वो क्या होगा, एज ए अंडर करेंट यहां से फ्लो होके यहां तक आएगा. सो ये दिस प्रोसेस विल क्रिएट अ क्लॉकवाइज मूवमेंट. इज इट क्लियर? क्लॉकवाइज मूवमेंट. ओके, देन देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ oceanic currents. Ocean currents are classified into two on the basis of temperature. Okay, first one is warm current, second one is cold current. So what type of water it is carrying? Okay, if it is carrying the warm currents or warm water from the tropical region, then it is simply known as warm current. If it is carrying the cold waters from the polar region, then it is known as cold current. So simply it is the temperature difference of the water. Okay, if you see the diagram, यहाँ पे क्या लिखा है, जो डॉटेड लाइन है वो है कोल्ड, जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज वार्म. ओके, वार्म ओशन करंट कहां पे मिल रहा है, देखो जो इक्वेटोरियल रीजन से जो पोलर रीजन की तरफ जा रहा है, इट इज द वार्म ओशन करंट. ऑन द अदर हैंड जो पोलर रीजन से इस तरफ आ रहा है दैट इज द कोल्ड ओशन करंट. क्लियर? सेम इन द साउदर्न पैसिफिक आल्सो, इक्वेटोरियल रीजन वार्म ओशन करंट, पोलर रीजन से जो इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आ रहा है दैट इज द कोल्ड ओशन करंट्स. So it is simply the equatorial location of the, not equatorial, it is the latitudinal location of the current. अगर वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ आया तो वार्म होगा, और अगर पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आया तो कोल्ड होगा.
कोल्ड करंट होगा। सेम ये जो नॉर्दर्न पैसिफिक का है, मैंने इसका कोई सेपरेट पैराग्राफ नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे सब नाम लिखा हुआ है। देखो ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल, इट इज साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड इट इज अ वार्म करंट, right? It is going from eastern direction to western direction along the equator. Clear? So it is the basic characteristics. Then we have the northern drift, because ये क्या होता है कि northern equatorial current जो रहता है वो northern drift करता है। Okay? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? It is the North Pacific current. It is a warm current. Okay? Then we have the south equatorial current, southward drift होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? East Australian करंट। क्लियर? नाम पता चल रहा है ना सब में से? हाँ, वो कुरोशियो का वो साथ ही है या फिर वो बस नाम अलग है उस रीजन में, जापानीज रीजन? वो जापानीज रीजन है इसलिए उसका नाम है कुरोशियो। मतलब एक ही है। वो जिस डायरेक्शन से, मतलब जिस रीजन से जिस डायरेक्शन में जाएगा उसका नाम अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। पहले ये है अलास्का ब्रिटिश, वो नीचे आ गया, वो कैलिफोर्निया हो गया, यही से देखो है ना, कोलंबिया, देन कैलिफोर्निया। सो वो ओशन करंट फ्लो कर रहा है, जहां जहां पे फ्लो करेगा अकॉर्डिंगली उसका नाम होता जाएगा, इसमें कोई दूसरा चेंजेस नहीं है। ओके, देन वी हैव द साउथ पैसिफिक करंट, वो जाके यहाँ पे आ गया है इसलिए पेरू करंट होता है। ओके, ये पेरू करंट में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हम लोग वेदर फेनोमेना देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता है? एवरी ईयर इंडिया में वो बोला जाता है कि इंडिया में ये आएगा कि नहीं आएगा, उसके ऊपर इंडिया का मॉनसून डिपेंड करेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? El Nino. What is El Nino? Is it what type of current? Cold or warm? Cold or warm? El Nino. Think before you speak. Think before you speak. The El Nino is a warm ocean current. El Nino क्या होता है? Warm ocean current होता है। That's why इस रीजन में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर जोन इतना इंटेंस होता है कि टोटल एशिया से जो मॉनसून विंड्स होता है वो इस तरफ चला आता है, मॉइस्चर लैडेन विंड्स। ओके, तो क्या होता है कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में रेनफॉल का कमी हो जाता है, देयर इज अ डाउनफॉल ऑफ रेनफॉल और देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल। ऑन द अदर हैंड, इफ ला नीना कंडीशन प्रिवेल्स देयर, मतलब यहाँ पे अगर जो नॉर्मल कंडीशन, जो कोल्ड ओशन करंट है वही अगर होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और यहाँ से जो मॉइस्चरस विंड है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चला आता है। सो देयर विल बी अ sufficient amount of rainfall. Is it clear? So El Nino La Nina is also related with the ocean current. Okay, then in case of Atlantic Ocean, it is for the Atlantic Ocean. Same dotted line means cold, warm single or continuous line means warm. Same northern equator, Gulf Stream, North Atlantic Stream, these all are the warm ocean current. South equatorial Brazil, Falkland, these all are the warm, oh sorry, not Falkland, South Atlantic, these all are the warm ocean current. On the other hand, this Benguela, Canaries, then East Greenland, Labrador, West Wind Drift, these all are the cold current. There is a very important thing, this Sargasso Sea. Sargasso Sea. Sargasso Sea में क्या होता है कि नॉर्थ अटलांटिक का जो रीजन है, इसके साइड बाय साइड रीजन में हम लोग ओशन करंट्स देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच में, इसके बीच में एक मोशनलेस, मतलब वाटर एकदम स्टिल होता है, कोई मोशन नहीं होता है उतना ज्यादा, एक सी दिखाई देता है। ओके, दैट सी विल बी नोन एज द सारगासो सी। ये सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक में ही दिखाई देता है। सो सारगासो सी इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट part of the North Atlantic Ocean. सारगासो सी, हाँ, ये क्या होता है? सारगासो मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एल्गी फॉर्म होता है। ठीक है, एल्गी कहाँ पे फॉर्म होता है? जहाँ पे स्टिल वाटर रहता है, वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा वाटर का बिकॉज मूवमेंट तो साइड बाय साइड हो रहा है।
मूवमेंट तो साइड बाय साइड होता है, बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ओशन वाटर जो होता है साइड बाय साइड ओशन वाटर मूव कर रहा है, बीच का ओशन वाटर मूव नहीं कर रहा है, वो एकदम स्टिल है। बिकॉज देखो पैसिफिक ओशन की तरह अगर हम लोग देखें, पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, मतलब नॉर्थ अटलांटिक का एरिया उतना बड़ा नहीं है, छोटा एरिया है। नॉर्थ अटलांटिक का जो एरिया है वो कंपेरेटली इट इज अ स्मॉल रीजन। सो इसके बीच में एक मोशनलेस वाटर होता है, यहाँ पे प्लेंटी मतलब बहुत सारा एल्गी, बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ग्रीन वाटर हो गया, बट कंपेरेटिवली हायर एल्गी फॉर्मेशन, देन फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन हम लोग देख सकते हैं। ओके, दैट पार्ट इज नोन एज सार्गासो सी। Then we have Indian Ocean. So in southern hemisphere we have the anti-clockwise movement of the ocean water or ocean current. This south equatorial current is warm current and west Australian current is cold current because it is coming from the polar region. But in the नॉर्दर्न जो बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न इंडियन ओशन में ऐसा कोई कोल्ड करंट नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो भी एरोज है वो सब एकदम कंटिन्यूअस एरो है, उसमें कोई ब्रोकन एरो नहीं है, बिकॉज यहां पे तो कोई पोलर रीजन है नहीं ना, पोलर रीजन नहीं है। सो ये टोटल है वार्म ओशनिक एरियाज। दैट इज वाई ड्यूरिंग प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून पीरियड this Indian Ocean region experiences large amount of cyclones. Okay, because देखो दूसरा जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर मोर और लेस मॉडरेट रहता है, क्योंकि यहां से कोल्ड करंट आता है, यहां से वार्म करंट आता है, राइट। पैसिफिक में देखो सेम, कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट, राइट। बट इंडियन ओशन में क्या होता है कि नॉर्थ इंडियन ओशन में कोई टाइप का कोल्ड करंट ही नहीं है, इट इज ऑल आर दी वार्म ओशन करंट एंड ऑल आर लैंडलॉक्ड, क्योंकि यहां से देखो पूरा एकदम लैंडलॉक्ड है, राइट। सो दैट इज वाई यहां पे मैक्सिमम एवरी ईयर, मतलब ये जो सितंबर का महीना आ गया, अक्टूबर का महीना आ गया, अभी एक साइक्लोन आने का चांसेस है, और एक साइक्लोन आता है कि मंथ ऑफ मई, अप्रैल में, ओके, तब एक साइक्लोन आने का चांसेस है। That is why every year this North Indian Ocean experiences a large number of cyclones. Clear? Okay. So that is from oceanography, because oceanography का ये वाला पार्ट पिछले दिन रह गया था, तो oceanography का ये वाला डिस्कस कर लिया। Now we will move on to our next topic, that is biogeography. Biogeography. So can you show me the maps again? Pacific. Let's just say. ये तो अटलांटिक है, दिस इज फॉर पैसिफिक। So mostly north में warm currents है, and south में नहीं, नॉर्थ में ऐसा मोस्टली नहीं है। देखो कि ये तो मॉडरेट हो रहा है ना, यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है, यहाँ से भी कोल्ड करंट आ रहा है, वन पार्ट इज वार्म, वन पार्ट इज कोल्ड, वन पार्ट इज वार्म, वन पार्ट इज कोल्ड। समझ में आया? वो इक्वल है। एक पार्ट जो पोलर रीजन से आ रहा है, यहां से आ रहा है ना, दैट इज द कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। ऑन द अदर हैंड ये देखो वार्म ओशन करंट है, that is for Pacific Ocean. Sir, एक बार example. Sir, India.
Okay, so these all are the different ocean currents from different oceans. Now we move on to our next topic, that is biogeography. Biogeography. Soil, the biologically active. But why it is biologically active? Or why it is written as biologically active? Because it's always in. Because every type of biological activity you can see on the earth soil surface. যত ধরনের बायोलॉजिकल एक्टिविटी আছে सभी किंतु सॉइल सरफेसেर ऊपर ही होচ্ছে. जितना टाइप का बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, मतलब तुम भी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हो डे टू डे लाइफ में, वो भी सॉइल के ऊपर ही है. वो तो एक साइड में तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वो सब तो है ही, अदर ऑर्गेनिजम्स तो है ही. अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्ज एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, ऑल आर लिविंग ऑन द सॉइल सरफेस. Everyone is dependent on soil surface. Okay. Porous medium that has developed. Why it is porous? Because जो rainfall होता है वो infiltrate करता जाता है. जो বৃষ্টিটা হয় ওটা কি মাটির মধ্যে দিয়ে ছুঁয়ে গভীরে চলে যায়. So porous medium that has developed in the uppermost layer of the earth's crust. Soil is one of the principal substrata of life on the earth because it is a principal medium. Without soil you cannot survive, literally. Serving as a reservoir of water and nutrient. Why it is a reservoir of water? Because groundwater जो मिलता है हम लोग को, फ्रेश ग्राउंड वाटर जो मिलता है. देन एंड न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज प्लांट को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? सॉइल से. सॉइल से जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो भी होता है, एनी टाइप ऑफ नाइट्रोजन, एनी टाइप ऑफ मिनरल और एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्लांट गेट्स फ्रॉम द सॉइल. As a medium for the filtration and breakdown of injurious wastes, and as a participant in the cycling of carbon and other elements through the global ecosystem. It has evolved through weathering process driven by biological, climatic, geologic and topographic influences. Because soil ऐसे नहीं फॉर्म हुआ कि एकदम से soil आ गया. क्या होता है कि एक रॉक सरफेस होता है, एक रॉक है, उसके ऊपर डे टू डे लाइफ में बहुत रेनफॉल हो रहा है, विंड उसको हिट कर रहा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसको हिट कर रहा है. ओके, वो होते होते क्या हुआ, डे बाय डे इसका छोटा छोटा पार्टिकल क्रिएट होगा. ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल क्रिएट होगा. दैट पार्टिकल्स विल क्रिएट it will create a sticky decomposed material. It is known as regolith. It is known as regolith. This Regulated by climatic. By climatic process, regulating process. soil formation results from the disintegration or weathering of parent rock by physical, chemical or biological agents. Okay, what are the disintegration or weathering? That means in Bengali we call it abohbikar. Okay, that means वेदरिंग ऑफ पैरेंट रॉक, जो पहले वाला जो मेन रॉक था उसका वेदरिंग होना, उसका डिसइंटीग्रेशन होना. ओके, बाय फिजिकल, एनी काइंड ऑफ फिजिकल, दैट मींस ड्यू टू टेम्परेचर और रेनफॉल. देन बाय केमिकल, दैट मींस एनी काइंड ऑफ केमिकल एक्टिविटी और केमिकल रीजन, और बाय बायोलॉजिकल एजेंट. बायोलॉजिकल एजेंट मींस ह्यूमन बीइंग, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा. As a result, small particles called regolith are formed. ये जो मेन पेरेंट रॉक होता है उससे छोटा छोटा ऐसे डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगोलिथ बोलते हैं. ओके, regoliths under the influence of the pedogenic process finally develop into the soil. So ऐसा नहीं है कि पेरेंट रॉक से डायरेक्ट सॉइल आ गया. पेरेंट रॉक से क्या क्रिएट हुआ? regolith further developed into soil. Clear? Okay. What's pedogenic? Pedogenic process means it is a very complex term. Okay, the term pedogenic means
This word pedogenic have two parts. One is pedo, another one is genic. Okay, pedo means soil or peds. Okay, genic means to generate, मीन्स किसको हम लोग पेड बोलते हैं? जो सॉइल होता है ना, सॉइल क्या होता है? ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल्स में फॉर्म होता है. सो हम लोग तो सॉइल को ऐसा देखते हैं, एक लेयर की तरह देखते हैं, लेकिन सॉइल का भी ऐसा ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है. ओके, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज पेड्स. ओके, so the pedogenic process means the ped generating processes. Ped means soil. Clear? These pedogenic processes can be divided into different types according to their characteristics. Okay, what type of characteristics? There are mainly two types of pedogenic processes. We will not go through the pedogenic process in detail because this is a very in-depth topic. We'll just write down the names. Okay, we have two types of pedogenic process. One is fundamental. In fundamental we have humification, then we have eluviation, then we have eluviation, and fourth one is removal. These all are the fundamental: humification, eluviation, removal. Humification, eluviation and removal. It simply means humification में क्या होता है कि जो ह्यूमस होता है ना, অর্গানিক রিমেইন, আমরা যেগুলোকে খাদ বলি বাংলায়, ওকে, গাছপালার পচা অংশ যেগুলো, that humus ফর্ম होता है through the process of humification. एलुविएशन के थ्रू, एलुविएशन में क्या होता है कि एक सॉइल का डिफरेंट लेयर्स होता है. इट इज द अपर लेयर, ओ लेयर, इट इज ए लेयर, it is B layer. Okay, 1 minute. We have this diagram. This is the diagram. This is the diagram. Okay. This is how a soil layer looks like. The uppermost layer is the blackest one or darkest one. It is known as O horizon. Okay. This part is made of mainly humus. बिकॉज क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होता है ना, डिकम्पोज्ड, वो होता है. इसके नीचे होता है ए, इसके नीचे होता है बी, इसके नीचे होता है सी. ओके, इन केस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, ओ लेयर फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ एलुविएशन. एलुविएशन में क्या होता है कि जो रेनफॉल होता है ना, इसके ऊपर तो रेनफॉल हो रहा है ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो विद दिस रेनफॉल जो यहाँ का जो न्यूट्रिएंट होता है, ए लेयर का जो न्यूट्रिएंट होता है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ एलुविएशन नीचे के लेयर में, बी लेयर में चला आता है. ओके, वॉश आउट होके. दिस रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ए लेयर, ओके, इज नोन एज व्हाट? द एलुविएशन. ये समझ में आ रहा है, एलुविएशन. ऑन द अदर हैंड, यहां से जो रिमूवल हुआ ए लेयर से, वो कहां के स्टोर होगा? बी लेयर में स्टोर होगा. तो इसको हम लोग बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूविएशन. ओके, दीज आर द फंडामेंटल. देन रिमूवल इज, से इसके ऊपर रेनफॉल हो रहा है, ये टोटल अपवर्ड जो लेयर है उसमें से जो हम लोग का न्यूट्रिएंट रिच और जो मिनरल्स होता है वो एकदम वॉश आउट हो गया. ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां से जो न्यूट्रिएंट्स है और मिनरल्स है वो वॉश आउट हो गया. दिस प्रोसेस विल बी नोन एज द रिमूवल. बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट और प्रोसेस और न्यूट्रिएंट और मिनरल्स होता है वो रिमूव होके चला गया. ओके, देन वी हैव सम स्पेसिफिक और स्पेशल पेडोजेनिक प्रोसेस.
special pedogenic process. First one, podzolization. Okay, first one is podzolization. Second one is calcification. Third one is salinization. Fourth one is laterization. Fifth one is alkalinization. Sixth one is GLEIZATION, glaization. Okay, so fundamental processes are 4, special processes are 6. Okay, so ये सब अभी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, क्योंकि ये सब टॉपिक अगर कवर करने जाए तो पूरा एक दिन चला जाएगा. सो दीज आर फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग. ओके, कहाँ पे था? यहाँ पे. Okay, clear? So what are pedogenic process? Factors of soil formation. Number one is parent material. Parent material क्या होता है कि ये जो रॉक होता है ना, जिससे सॉइल फॉर्म होता है प्राइमरीली, it is known as parent material. The parent material of soil may be deposited by streams or derived from in situ weathering. Soil inherits many properties from the parent material from which it forms. For example, the mineral composition, color, particle size and the chemical elements, etc. That means क्या होता है कि कौन सा रॉक से कौन सा सॉइल क्रिएट हुआ, that will be known as the parent material of the soil. Okay, अभी देखो, the peninsular soil reflects the parent rock very much. Why? Because peninsular region is formed by what type of rock? Peninsular region is formed by what type of rock? पेनिनसुलर नया बनाया है, मतलब Peninsular soil reflects parent rock very much. Peninsular soil कौन से रॉक से क्रिएट हुआ है, और peninsular region of India कौन से रॉक से बना हुआ है? Peninsular region मतलब कौन सा रीजन? डेक्कन ट्रैप, southern India, metamorphic, sure. Peninsular region is totally formed by the igneous rock. It is the basalt. Okay, the top one is metamorphic. ये ऊपर Top one is metamorphic. है ना? मैंने बोला था. नहीं, No. टॉप लेयर में तो सॉइल ही है. मतलब top in the sense like top India like this. Oh, मतलब टॉप में रीजन मींस नॉर्दर्न इंडिया. इट इज तो स्पीक प्रॉपर्ली. नहीं, दिस इज नॉर्दर्न इंडिया. तो टॉप कैसे हुआ वो? नहीं, वो टॉप नहीं है, वो नॉर्दर्न इंडिया, सादर्न इंडिया. ओके, द पेनिनसुलर सॉइल फॉर्म्ड बाय द बेसाल्ट रॉक. बेसाल्ट का कलर क्या होता है? Basalt is ना basic ना? हाँ Basic, so it will be lighter. लाइटर, Darker. बेसाल्ट का कलर होता है मेनली ग्रेइश और ब्लैकिश. सो सदर्न इंडिया का जो सॉइल होता है वो भी ब्लैकिश ही है. Soil derived from lava rocks, that means basalt, are black colored. It is the influence of parent material on soil. Then sandy soils are derived from sandstone. अगर sandstone से जो soil create होगा वो कैसा होगा? Sandy होगा, मतलब उसमें sand का part ज्यादा रहेगा. Clear? The ancient crystalline rocks, crystalline and metamorphic rocks, which are basically granite, gneiss and schist, form red soils on the weathering because they contain iron oxide. अभी लावा में तो आयरन होता है ना, लावा मैग्मा में आयरन होता है. सो ये जो लावा से और मैग्मा से जो रॉक क्रिएट होगा वो उसका कलर क्या होगा? मेनली
आयरन, मतलब आयरन की वजह से, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से रेडिश होगा या फिर ब्लैकिश होगा। अगर बहुत ज्यादा आयरन कंटेंट हुआ तो वो रेडिश हो जाएगा। क्यों रेडिश होगा? क्योंकि आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन होने से वो रेड कलर होता है। लोहार ऊपर मोर्चे धरले लाल लाल कलर है ना, राइट? सो दैट इज वाई। ओके, दिस इज द इफेक्ट ऑफ नो नो नो, मैं तो उसको बोला बंगाली में। ओके, सो दैट इज द केस। समझ में आया कि अगर आयरन का कंटेंट ज्यादा हुआ तो ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, वो लाल कलर हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पेरेंट मटेरियल। देन द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, ये वाला डायग्राम। The role of climate is to vary the inputs of heat and moisture. It affects the rate of weathering of the parent rock. Hot and humid environment in general witness the most rapid weathering of parent materials. Okay, because जितना ज्यादा weathering होगा और जितना ज्यादा climate का इफेक्ट आएगा, उतना ज्यादा वेदरिंग फास्ट होता जाएगा। मतलब देखो ऐसा है कि सिर्फ टेम्परेचर है, रेनफॉल नहीं है, तो वेदरिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अभी रेनफॉल भी हो रहा है, टेम्परेचर भी हाई है, तो वेदरिंग हाई होगा। अभी टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर खूब कम, तब वहां पे भी वेदरिंग कंपैरेटिवली लेस होगा। ठीक है, सो hot and humid environment in general witness the most rapid weathering and parent materials, weathering of parent materials. That means hot and humid means जहां पे टेम्परेचर भी हाई है, रेनफॉल हाई, hot and humid. Okay, role of precipitation in areas that experience a lot of rainfall. Water percolating through soil tends to leach nutrients or organic matter out of the upper layers unless modified by other soil components like plant roots. That means क्या होता है कि देखो ये जो लेयर है और ये दोनों लेयर, मतलब दो एरिया है, राइट? एक में क्या हो रहा है कि सन एंड रेन बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे सन रेन है लेकिन यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, राइट? सो देखो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक है और यहाँ पे ब्लैक कलर का लेयर कंपैरेटिवली कम है। क्यों? दिस ब्लैक लेयर सिग्निफाइज द ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, अभी अगर मतलब जितना ज्यादा सन रेन होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नीचे ट्रेवल करेगा और ब्लैक लेयर उतना ज्यादा थिक होता जाएगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक लेयर है इट इज मच मोर थिनर। ओके, बहुत थिन है, थिक नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, देन रोल ऑफ precipitation in areas that experience a lot of rainfall. Water percolating down through soil tends to leach nutrients and organic matter out of upper layers unless modified by the other soil components like plant roots. क्या बोला है कि जहां पे बहुत सारा रेनफॉल होता है वहां पे जो न्यूट्रिएंट होता है और मिनरल होता है वो क्या होता है कि अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ चला जाता है, वो अपर लेयर में नहीं रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा रेनफॉल होगा उतना ज्यादा পারকোলেশন होगा और ইনফিল্ট্রেশন হবে, রাইট? মানে ওটাকে কি বলি আমরা, জলের অনুপ্রবেশ হবে। क्या हो गया? उतना ज्यादा क्या होगा कि इनफिल्ट्रेशन होगा एंड जो मिनरल्स होगा वो नीचे बैठता जाएगा, वो नीचे वॉश आउट हो जाएगा। On the other hand, in case of temperature, solar energy usually expressed as temperature controls the form of water falling onto the soil surface as well as in the soil. Also, it increases the rate of reaction such as chemical reaction. अभी chemical reaction जो होता है वो कौन से region में ज्यादा होता है, warm region या फिर cold region? Obviously warm region. So that is why chemical reaction के लिए या फिर chemical weathering के लिए sunlight होना जरूरी है, नहीं तो वो chemical reaction नहीं होगा। So केमिकल वेदरिंग जो होगा वो ज्यादा होगा ड्यू टू द सनलाइट। इज इट क्लियर? ओके, देन द इफेक्ट ऑफ बायोटा। बायोटा मींस द ऑर्गेनिजम्स। ओके, बायोटा इन कंजंक्शन विद क्लाइमेट मॉडिफाइज पेरेंट मटेरियल टू प्रोड्यूस सॉइल। क्या होता है कि देखो क्लाइमेट तो है, अभी क्लाइमेट जो होता है वो क्लाइमेट सॉइल के ऊपर वन टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन बायोटा या फिर ऑर्गेनिक लेयर कब फॉर्म होगा? जब उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म होगा,
রাইট? মানে মাটির উপরে যদি গাছপালা না থাকে তাহলে গাছের ডালপালা তো মাটির উপরে পড়বে না, ওটা পচে গিয়ে জৈব পদার্থ तैयारी হবে না। ओके, अगर सॉइल के ऊपर प्लांट्स है तभी उसका जो लीव्स हुआ, स्टेम्स हुआ, या फिर छोटा छोटा वो क्या बोलते हैं उसको, सो क्या बोलते हैं, शूट्स बोलते हैं ना, प्लांट्स लीव्स, देन ऑफ शूट्स, देन वो स्टेम्स होता है, वो जमीन के ऊपर गिरेगा, वो डिकम्पोज होगा, उसी से उसका ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट होगा, राइट? सो कितना बायोटा है या फिर कितना ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा ऑर्गेनिक ओ लेयर होगा। ओ लेयर मींस सिंपली ऑर्गेनिक लेयर्स, वो जो डायग्राम दिखाया था ना सॉइल प्रोफाइल का। सो द अमाउंट ऑफ बायोटा डिटरमाइंस द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल और ऑर्गेनिक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन द सॉइल। नेक्स्ट वी हैव द टोपोग्राफी एंड टाइम। Topography is often considered as a passive factor modifying the effects of climate. क्या होता है कि पहले जो तीनों पढ़ा वो सब था एक्टिव फैक्टर्स, नाउ विल मूव ऑन टू द पैसिव फैक्टर्स। पैसिव फैक्टर्स मींस, देखो ये जो डायग्राम देखो तभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, पुअर सॉइल, PWR, ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये जूम है तो इसलिए। पुअर सॉइल, एवरेज सॉइल, ग्रेट सॉइल। ओके, पुअर सॉइल मींस देखो यहाँ पे जो सॉइल का जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है, ओके, ये थिकनेस यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे आके थिकनेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आके थिकनेस और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां से जो वॉश आउट होगा, क्योंकि रेन यहाँ पे पड़ने के बाद ये वॉश आउट हो जाएगा, ये तो रेन तो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे सॉइल लेयर बहुत थिन होगा, कंपैरेटिवली ये जो रीजन है यहाँ पे सॉइल लेयर बहुत थिक होगा, राइट? और इसलिए जो हिल रीजन है वहां का जो सॉइल लेयर होता है वो बहुत कम होता है, और यहाँ का जो सॉइल लेयर होता है वो बहुत ज्यादा, प्लेन रीजन का सॉइल का जो थिकनेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, घर कहाँ पे है तुम्हारा? गैंगटॉक। वहां का सॉइल का थिकनेस कैसा है पता है? देखा नहीं कभी। ड्यूरिंग एक्सकैवेशन देखा है? एक्सकैवेशन मतलब वो जमीन जब खोदते हैं तब देखा है? नहीं देखा। मतलब जमीन का फाउंडेशन बनाने के लिए गड्ढा करना पड़ता है, राइट? যত বড় বিল্ডিং হবে তার নিচে যে ফাউন্ডেশনের माटीटा जो खुदता है तत बड़ो खुदता है, मतलब वो फाउंडेशन के लिए उतना ज्यादा बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा जितना बड़ा बिल्डिंग होगा। अभी क्या होता है कि माउंटेनस रीजन में फाउंडेशन उतना बड़ा नहीं होता है, अभी तो बिल्डिंग तो बहुत मतलब बड़ा बड़ा बना रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन के लिए उतना जगह नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां का सॉइल लेयर तो बहुत कम होता है, ओके। लेकिन प्लेन रीजन में बहुत लंबा लंबा बिल्डिंग होता है, मतलब 10 स्टोरीज 20 स्टोरीज बिल्डिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका सॉइल लेयर ठीक होता है, इट कैन होल्ड दी हेवी फाउंडेशंस। ठीक है? अभी माउंटेनस रीजन में अगर तुम बहुत ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सॉइल लेयर ही थिन है बहुत, राइट? दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीफ, ओके। Topography is often considered, okay. Topography redistributes the water reaching to the soil surface runoff from the upland, creates wetter condition in the lowland. In some cases, saline sloughs and organic soils. Okay, in some cases, saline sloughs and organic soils. Thus, as a redistributor of the climate features, topography affects soil process, soil distribution, and the type of vegetation at the site. Okay, soils can take many years to form. Younger soils have characteristics from their parent material, but as they age, the addition of the organic matter, exposure to moisture, and other environmental other environmental factors may change its feature.
ऐसा नहीं है कि एक सॉइल 10 इयर्स 12 इयर्स में और 20 इयर्स में फॉर्म हो गया। ओके, थैंक यू। 10 इयर्स 12 इयर्स और 20 इयर्स में फॉर्म हो गया। इट रिक्वायर्स